Let's do a question based on Leibniz theorem. So if y equals to cos of m sine inverse x, we need to show that 1 minus x square y n plus 2, that means the n plus 2th derivative, minus 2n minus 1 x into n plus 1th derivative, minus n square minus m square into nth derivative equals to 0. So let's move ahead with y equals to cos of m sine inverse x. Here it is written n plus 2, that means पहले हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्मली, फिर लेबनीज का इस्तेमाल करना है. तो यहां पे हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x both sides. So we will get y1 equals to derivative of cos is minus sine m sine inverse x. We will use the chain rule. Derivative of m sine inverse x is m upon under root 1 minus x square. We can send this under root 1 minus x square to the LHS. So under root 1 minus x square y1 equals to minus sine m sine inverse x multiplied by m. Squaring both sides. So 1 minus x square, derivative of y1 is, sorry, we are squaring both sides. So this will be y1 square equals to sine square m sine inverse x into m square. Now again differentiating both sides with respect to x, we will get 1 minus x square as it is. Derivative of y1 square is 2y1 into y2 with the help of chain rule, plus y1 square as it is. Derivative of 1 minus x square is minus 2x. In the RHS, first the derivative of power. So 2 sine of m sine inverse x, then derivative of sine of m sine inverse x, which is cos of m sine inverse x, then the derivative of m sine inverse x, which is m upon under root 1 minus x square, and we also have a m square there, so we can write that multiplied by m square. Now if you look at this closely, cos of m sine inverse x, we all know is nothing but this portion is our y. Sine of m sine inverse x multiplied by m multiplied by 1 upon under root 1 minus x square. This is nothing but minus of y1. So this and this will give us minus of y1. Okay. So we can write this as, first of all, do one thing. Cancel out 2 times y1 from both the side. So we will get 1 minus x square. 2 times y1 is gone, so y2. 2 times y1 is gone, so minus of y1 into x equals to 2 times y1, which was our y1, sine of m sine inverse x into this portion. So this was minus y1, so we are left with minus of this is y and then m square. Now if you are getting confused, what was written in RHS was 2 times this and this was minus y1 and this was y and this is m square. I took cancel 2 times y1 from both the side, so what we are left with is minus y into m square, minus y into m square. अब
लेबनीज रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स n times using लेबनीज थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, y2 तीन चीज है, इसका इसका और इसका, इसमें लेबनीज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो आराम से हम कर लेंगे कि y का yn होगा, इस दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम y2 का yn प्लस 2, nc0 इसका nth डेरिवेटिव, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक, प्लस nc1 मतलब n, इसका एक डेरिवेटिव कम कर देना है मतलब yn प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो -2x प्लस nc2 मतलब n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखते, लेकिन उसको अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाएगा। इसको एक कम करेंगे तो yn -2x का क्या हो जाएगा, -2। अब वही -2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारे पास -1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे फिर डेरिवेटिव 0 होता जाएगा। RHS में -m² y का yn, ठीक, तो 1 - x² yn प्लस 2 और yn प्लस 1 के साथ हमारे पास क्या क्या है, yn प्लस 1 के साथ यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, ये हमने लेबनीज रूल का इस्तेमाल अभी बस इस पे किया है, एक बार इस पे भी लेबनीज रूल का इस्तेमाल करना होगा तो वो हमें मिस नहीं करना है। तो यहीं पे कर देते हैं नीचे, इसमें माइनस साइन बाहर रख लेते हैं, y1 का yn x एज इट इज प्लस nc1 मतलब n, इसका एक कम मतलब yn माइनस 1 और x का फिर 1 हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब एक बार लिख देते हैं 1 - x² के साथ yn प्लस 2, ये हमने yn प्लस 2 वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। अब yn प्लस 1 के साथ क्या क्या आ रहा है ये ध्यान से देखने वाली बात होगी। तो yn प्लस 1 के साथ क्या क्या आ रहा है, एक सेकेंड, y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1 होता, y1 का nth डेरिवेटिव x एज इट इज प्लस nc1, इसका एक डेरिवेटिव कम, इसका डिफरेंशिएशन, तो yn प्लस 1 के साथ हमें यहां से -2nx मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं तो 2n मिला, ठीक है, x को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये टर्म हो गया। और कहाँ पे है, यहाँ पे, अब माइनस साइन हमने पहले ही बाहर रख लिया तो यहां से x आया मतलब +1, ठीक है। अब yn के साथ क्या क्या आ रहा है, तो yn के साथ देखें तो n² - n, तो yn अगर ले तो उसके साथ n² - n, ठीक है, और एक माइनस साइन yn के साथ था तो उसको बाहर रख दें, ठीक है। और इधर से m² आएगा तो +m²। इसके अलावा हमारे पास एक बार फिर से इस पे ध्यान दे देते हैं, इस वाले पे साइड पे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास y1 × x है तो इस पे कैसे लेबनीज लगाते हैं, क्योंकि ये इसी के कारण दिक्कत हो रहा है। तो y1 का nth डेरिवेटिव yn प्लस 1, बेसिकली nc0 होता,
इसका nth डेरिवेटिव x एज इट इज प्लस nc1, इसका एक कम कर दे तो yn x का 1, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है हमारे पास yn प्लस 1 x प्लस n टाइम्स yn प्लस 1 x, इससे एक कम होगा तो yn होगा, ठीक है। तो yn के साथ एक ये भी आ जाएगा माइनस ऑफ n, ठीक है, माइनस साइन पहले बाहर तो प्लस ऑफ n, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खुद से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। माइनस ऑफ 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये m स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस m स्क्वायर आएगा, और उसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया इसलिए यहां पे भी माइनस साइन आएगा। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। तो प्लस माइनस की गलती के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। हमने काफ़ी बार रेक्टिफिकेशन कर लिया, बेसिकली यहाँ से हमने गलत लिख दिया था और बाकी इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। बाकी कॉन्सेप्ट तो सही लगाया हमने, एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर दूसरे बार डिफरेंशिएट किया और फिर लेबनी रूल्स के इस्तेमाल से हमने इस इक्वेशन तक पहुंचने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।